validations. So we can observe. I mean, this is the example here. Regular expression is A to Z, small a to Z, 0 to 9 plus underscore dot hyphen and plus at the rate dot plus dollar. Also check the username password, sorry, username part of the email address. In order to check username part of email, we have to add some restriction by using regular expression regex. So A to Z means like characters are allowed. Small a to Z, I mean small characters are allowed. 0 to 9, it means numbers are allowed. Additional email can contain, for example, it contain dot, it contain underscore, it contain dash, and remaining characters are not allowed. And apart from it, except these and others are not allowed. Okay. So we can understand here, like one of the array list object they have created, and there actually they have added so many email IDs. Okay. So for example, in some email ID in the end contain .com, .co, .in. Okay. There, I mean, so we can understand here www dot amazon dot in. Look at this dot in. In means India. Okay. So if we are putting dot in, this website will open in India, and if I will put here com, then because it's a global company. So look at this, and now this website is open in a USA. Okay, look at this, default language is coming US, and so some email ID contains like I mean in the end com, some content net, some content different. Okay. Okay, so here are some email ID added in the array list, like Java T point at the rate domain.co.in and Java T point at the rate domain.com. So like this. So they have created one of regex. So this is called regex, and we can call it regular expressions. Okay? So here example A to Z, small a to Z, 0 to 9 plus underscore dot minus, these are the allowed. And plus at the rate symbol also allowed, and after that there is a dot and plus dollar. Okay, so these are the, I mean this dollars also contain some, it contain I mean some meaning. So now what they're trying to check here, email ID just they are getting, and just they are printing all the email IDs. I mean it's a printing, and apart from it is telling, like for example email ID they are fetching, they are just printing from the, and matches they are getting the match. If it is matching, then it is going to return the true, and if it is not matching, then it is going to return the false. Okay. Okay, so for example they are fetching one email ID that is called the Java T point at the rate domain, sorry, domain.co.in. Okay, domain.co.in, and this they are saying it is a true, because it is following this expression. Okay, this is coming, this is following this expression. Okay, and after this at the rate symbol they are saying, I mean dot plus, I mean dot, and apart from it some dollar. Is there any meaning for this dollar? The meaning of dollar they are saying. Anyway, so they'll create one expressions here, regex, and based on that regex, they are finding out, I mean, which one is matching, which one is not matching. For example, Java T and point, at the place of at the rate they are using here hash. So it is showing this is not matching. So based on that, if it is not matching, we can say email ID is not valid in format. Okay.
Java T underscore are allowed here. Okay, underscore are allowed. Java T point underscore at the rate domain.com true. Java T point at the rate domain. So even though we are not putting here dot, but it is still it is allowed. So it is returning true. At the rate yahoo.com, this is returning false. So 12 Java T point at the place of at the rate symbol they are putting hash pound key. So it is returning the false. So based on this true false we can get to know कि हमारा जो email ID जो कोई enter कर रहा है that is correct or not. So email validation permitted by RFC 5322 and to validate the email permitted by RFC this we have to we use A to Z small and A to Z capital 0 to 9 and exclamatory symbol underscore these all and so equal question mark all regular expression it use all the character which are allowed by RFC for the email message format and in these characters some character present risk when they pass directly from the user input as an SQL statement. These characters are basically pipe character. Okay, so this is nothing called one of pipe character. Okay, this is the pipe character. So and single quote and etc. So here is the thing they are saying. So it is saying only all 3 email ID are valid. Only one at the rate yahoo.com is false because before the at the rate it should contain some symbol, some characters. Okay. So do all the practice for this. Okay. Email related validations are there. So you can go through all these examples. So you will understand. You will get idea how we can create the regex for email ID validations. Okay. And what you can do, you can take the input from the by using a scanner. So you'll get the feeling like I'm putting the username as email ID and then it is validating if it is valid or not. Okay. So I'm sharing this here. Okay. Go through it. Do all the example which are given in this. Let me know if you are facing any challenge, any problems, not able to understand. Okay. So the sufficient examples are here. Sufficient examples are here. Okay. Now we are moving towards the enumeration. Okay. Okay. So we use enum, enum to define a group of named constant. Okay. So constant बनाने के already we know कि final static public static final variables which we are declaring it will become the constant. Okay. If we are putting final keyword before the variable that the variable becomes the final. Okay. So constant बनाने के 2 तरीके हैं जावा में either हम enum के through constant create कर सकते हैं or we can create manually by using the final final modifier. So okay, so here is the thing enum month. So enum month, for example month के लिए इन्होंने enum बनाया है, they created enum for month. So January, February, Jan, Feb, March to December. इसमें semicolon क्या रहता है? It's optional. You can put either you can if you're not putting then also it will work. Okay. If you will see in the if you will observe in this, so you will get like to create the class, to create the interface in a same way there is a way to given to create the enum as well. Okay.
Okay. So, and this enum is created for beer. I mean, there is a, this is a, I mean, company name, brand name, KF, KO, RC, FO. This is a, I mean, beer example. By using enum, we can define our own data type. And enum concept introduced in 1.5 वर्जन. तो 1.5 से पहले enum नहीं था. 1.5 के बाद ये enum introduce हुआ है. So if we are using by using enum हम अपना खुद का data type create कर सकते हैं, है ना. enum concept introduced 1.5 version, and when compared with old language enum Java, enum is more powerful. जैसे I mean if we talk about C++ language compared to them, enum here it is a more powerful. So internal implementation of enum क्या है? Okay. So enum concept internally implemented by using class concept. जैसे class implemented की गई वैसे उसी के basis पे enum also concept is implemented. Every enum constant is reference variable to enum type object. So enum type का basically क्या है? Reference variable होता है. Whatever variable we are declaring inside the enum, generally enum के through हम लोग क्या बनाना create कर रहे हैं? Constants. So every enum constant always public static final by default. Okay, हम भी ऐसे ही बनाते हैं, public static final खुद का constant बनाते हैं. Okay, we create our own constant. Okay, so I am creating one of package for enum. Okay, for example, let me show you. I am going to right click here, go to new, and here is the option to create a enum. Create an interface, create a class, create a annotations, and here is the option is given to create the enum. Enum we can create from here. Okay, first of all let me create the package here, then we will move towards the enum. Okay. So I'm creating one of enum here, like this I can create. Okay, months. So months enum I'm creating here. Okay, and this is a enum. So at the place of class keyword it will come enum, enum. Okay, and I can declare here. Then I mean, are they taking it? Okay, comma f comma comma. So like this we can create the constants in this. Okay, and by using the class name by default these are the public static final, so we can access directly by using the class name. Okay. Okay, so semicolon I mean it is totally optional, हम लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते. Okay. Okay, so we have created the constants for this months. सर और कोई कोमा भी यूज कर सकते हैं इसमें? कोमा तो ये वेरिएबल को सेपरेटेड करने के लिए कोमा यूज कर रहे हैं. ओके, सेमी कॉलन यहाँ पे ऑप्शनल है, आप लगाना चाहो लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तब भी कोई एरर नहीं देने वाला आपको. So in the test class easily you can use it. Okay. Okay, so I'll come later for testing. First of all, we can understand. So okay, so internal implement enum concept internally implemented by using class. जैसे class create होती है वैसे enum होती है. Every enum constant is a reference variable to enum. अब यहाँ पे जो भी इसमें constants create किए गए हैं
जैन फेब, ये बेसिकली रेफरेंस वेरिएबल हैं किसके, मंथ्स क्लास के। ओके, मंथ्स क्लास कौन सी क्लास है, इट इज कॉल्ड द enum क्लास। ओके, एवरी enum कांस्टेंट ऑलवेज पब्लिक स्टैटिक फाइनल बाय डिफॉल्ट, हम उसमें वी डू नॉट नीड टू पुट, वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल है। ओके, so here is the thing, this is a enum class like enum month, and here is a jan feb to december। okay, इंटरनल व्हाट विल हैपन, एक जनवरी टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, एंड इन दी जैन इट विल कम दी रेफरेंस वेरिएबल, फेब वन ऑफ ऑब्जेक्ट विल क्रिएट, है ना, दिसंबर वन ऑफ ऑब्जेक्ट विल क्रिएट, एंड इसके पैरेलल में जो क्लास होनी चाहिए, अगर ऐसी हम अपनी क्लास बनाएंगे, वी विल क्रिएट, इसी इनम जैसी हमें जावा में, मान लीजिए इनम नहीं है, हमें खुद अपनी क्लास बनानी। ओके, सो फॉर एग्जांपल आई वांट टू सेम इसी जैसी क्लास अगर मुझे बनानी सर होती विदाउट इनम। यस, सर इनम क्या होता है, एक बार रिपीट कर देंगे, थोड़ा समझ नहीं आया। इट इज काइंड ऑफ क्लास, मतलब जैसे क्लास है ऐसी कॉन्सेप्ट है किसका, इनम, इनम भी एक क्लास ही है। ओके, इनम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्लास। इसका ओके, और यूज क्या इस है सर इनम का? कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करते हैं इससे, क्या क्रिएट करते हैं, कॉन्स्टेंट्स मतलब वो वेरिएबल जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, इनकी वैल्यू क्या कर देते हैं हम लोग, फिक्स कर देते हैं जिनकी वैल्यू। जैसे अगर ये इनम ना होता तब हम नॉर्मल क्लास में कैसे बनाते हैं अपनी क्लास। ओके, तो आई एम क्रिएटिंग वन ऑफ क्लास हियर, तो वो बेसिकली नाम में यहाँ पे डिफरेंट ले रहा हूँ, आई एम क्रिएटिंग दिस मंथ क्लास। ओके, इसी के पैरेलल में अगर मुझे खुद का बनाना होता, अगर इनम कॉन्सेप्ट नहीं है बट मुझे कॉन्स्टेंट्स बनाने हैं, ओके, तो मैं कैसे बनाता, पब्लिक स्टैटिक फाइनल, पब्लिक स्टैटिक फाइनल एंड month, it is a month। okay, and here is a jan is equal to new month। okay, अगर मुझे खुद से जैसे बनाना होता, सी इनम में मैंने क्या किया, केवल एक लिख दिया जैन, इसका मतलब अगर मैं अपनी क्लास में लिखता तो मुझे ये लाइन लिखनी होती यहाँ पे, ये बेसिकली इक्वल है किसके, इस एक जैन के इक्वल। ओके, अगर मुझे फेब का ऑब्जेक्ट बनाना है तो अगेन व्हाट आई विल डू, इस तरीके से, और मुझे जैन की जगह क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, फेब। तो मुझे इस तरीके से अपना, जैसे ना इसमें बेसिकली क्या करना होता, इस तरीके से मुझे इसमें बनाना पड़ जाता। ओके, ओके, अगर मुझे अपनी नॉर्मल क्लास में अगर कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करने होते हैं तो आई शुड क्रिएट इन दिस वे ओनली। कुछ इस तरीके से मुझे सर कांस्टेंट बनाने होते। ओके, अगर सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, सर हम ये करी ऐसे करी क्यों रहे हैं, मतलब क्या है इसका बेनिफिट, क्या है मतलब? कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, है ना, जिसकी वैल्यू फिक्स हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे वैल्यू फिक्स करना है। ओके, आई मीन जैसे मुझे यहाँ पे ना एक वेरिएबल क्रिएट करना है, मैक्स की मैक्स वैल्यू, इसकी मिन वैल्यू, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, लेट मी टेल यू,
थ्रेड क्लास का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, थ्रेड t इक्वल टू न्यू थ्रेड। ओके, तो थ्रेड क्लास के अंदर अगर आप देखोगे तो कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं। थ्रेड का बेसिकली थ्रेड प्रायोरिटी की मिन मैक्स ये सब वैल्यू होता, फिक्स वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू होगा, मीडियम आई मीन नॉर्मल होगा एंड मैक्स वैल्यू होगा। ओके, मिन, नॉर्म एंड मैक्स वैल्यू, ये कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे इसके अंदर। सो लेट मी टेल यू, यू विल सी इन दिस कुछ कॉन्स्टेंट्स हम लोग बना के चलते हैं। ओके, इन दी कोडिंग एज वेल। ओके, कांस्टेंट मतलब सम वेरिएबल्स जिनके वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। सी, सो जैसे फॉर एग्जांपल मिन प्रायोरिटी के लिए इन्होंने कांस्टेंट क्रिएट कर लिया और उसके अंदर क्या इनिशियलाइज कर दिया 1। ओके, एंड मैक्स नॉर्मल प्रायोरिटी के लिए इन्होंने एक कांस्टेंट वेरिएबल ले लिया जिसमें क्या इनिशियलाइज कर दिया 5। एंड मैक्स प्रायोरिटी एक वेरिएबल ले लिया जिसमें क्या इनिशियलाइज कर दिया 10। चूंकि फाइनल है सो अब इसको हम मॉडिफाई कर नहीं सकते। ओके, तो फाइनल बनाने का तरीका कुछ कुछ जैसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको जिनकी वैल्यू हमें कांस्टेंट्स नीड होती है, वी नीड दी कांस्टेंट वैल्यू फॉर इट। ओके, सो उसके लिए हम लोग ये क्रिएट करते हैं। तो आइदर हम ऐसे बना लें किसी क्लास के अंदर, या फिर हम उसके लिए क्या कर लें, इनम बना लें। इनम में आप ये, इनम में भी हम लोग ये डिफाइन कर सकते थे मिन प्रायोरिटी, मैक्स प्रायोरिटी, नॉर्मल प्रायोरिटी। ओके, और उसमें भी क्या हो जाता है, ये बेसिकली क्या हो जाता है, इसका वैल्यू फिक्स हो जाता इन अ सेम वे। जैसे कि थ्रेड के अंदर हमने कुछ कांस्टेंट, आई मीन दे हैव क्रिएटेड सम कांस्टेंट और जिनकी वैल्यू क्या है, फिक्स। तो ऐसे हमें कोडिंग में कांस्टेंट्स बनाने की जरूरत पड़ती है। तो आइदर हम कांस्टेंट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पब्लिक स्टैटिक फाइनल, और वी कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ इनम। इनम के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट्स बना सकते हैं, वी कैन क्रिएट दी कांस्टेंट्स हियर। ओके, सो अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे अगर इसकी थ्रेड की प्रायोरिटी अगर मुझे यहाँ पे करनी है तो मैं क्या लिखूंगा, टी डॉट सेट प्रायोरिटी, सेट प्रायोरिटी थ्रेड डॉट मैक्स। सो अब आइदर मैं यहाँ पे मैक्स प्रायोरिटी डायरेक्ट क्या लिख देता 10, लेकिन 10 क्या हो रहा है, हार्ड कोड हो रहा है। इफ आई विल पुट लाइक दिस, तो इसमें भी क्या आ रहा है कि थ्रेड से मैंने मैक्स प्रायोरिटी की वैल्यू को फेच किया, तो उसने यहाँ पे इसको भी 10 ऐड कर दिया। तो ये जो मैक्स प्रायोरिटी वेरिएबल है इसके अंदर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू 10 है इसके अंदर, है। आई कैन गो, आई कैन शो यू, क्या पड़ा हुआ 10। ऐसे हमें कोडिंग में जब हम कोड लिखते हैं तो कुछ हमें कॉन्स्टेंट्स बनाने की जरूरत पड़ती है। सो कांस्टेंट आइदर हम इनम के थ्रू बना सकते हैं, या फिर ये लाइन, होल लाइन हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो ये बेसिकली दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, सी ये इसके इक्वल है, इसके पैरेलल है। ओके, सो नाउ वी कैन सी। ओके, सो द पैरेलल में जो क्लास आएगी दैट विल कम लाइक दिस। ओके, सो डिक्लेरेशन एंड यूजेज ऑफ इनम क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल बियर क्लास के लिए इन्होंने इनम बनाया के एफ, के ओ, आर सी, एफ ओ। ओके, और इनके कांस्टेंट बेसिकली यहाँ पे डिफाइन किए कि बियर b1 इज इक्वल टू बियर डॉट के एफ। अब b1 को आप प्रिंट करोगे एंड वी आर एबल टू फेच दिस के एफ, वी आर एबल टू फेच इट हियर, है ना। सो फॉर एग्जांपल मुझे जैन मंथ, जैसे जनवरी मंथ अगर फेच करना है, so what I can do in a test class, I can create the object of, I can create the object of month, months. Okay, m1 is equal to and months dot, for example मुझे जनवरी मंथ फेच करना है। ओके, now if I, when I will print it and m1 I will print it, and this will give the, this will give the Jan here. So any constant which I have declared, अब मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, उसको यूज कर सकता हूँ, I can use that. Okay, so in a same way they are trying to fetch like this. So we can declare enum either with the class, or inside the class we can create, and outside of the class
बट नॉट इनसाइड मेथड। मेथड के अंदर हम क्रिएट नहीं कर सकते, हम enum क्लास के बाहर भी बना सकते हैं, क्लास के अंदर भी बना सकते हैं, बट मेथड के इनसाइड नहीं बना सकते। If we are declaring enum within the method, we will get compile time error. For example, enum x and class by, this we can do, it's fine. Class by and enum x, क्लास के अंदर एक enum टाइप की क्लास बनाइए, that will also work. But inside this m1 method we cannot create enum, so remember this. Inside class or outside class we can create, but inside method we cannot create the enum. If we declare enum outside the class, the applicable modifiers are public, default, static, strict AP. So if we are declaring enum within a class, so applicable modifiers इसमें public, default, strict empty, private, protected, static, ये सब modifier हम इसमें use कर सकते हैं. So enum versus switch statement. So switch के टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था कि switch में हम लोग Java 1.5 onward से switch के पैरामीटर में enum टाइप हम ले सकते हैं. We can take as enum type. Look at this. switch के पैरामीटर में अर्लियर हम लोग है ना 1.4 वर्जन तक वाइट, शॉर्ट, कैर, इंट, यही 4 कैरेक्टर ले सकते थे, 4 वेरिएबल ले सकते थे. एंड आफ्टर 1.5 वी कैन टेक आई मीन रैपर क्लास ऑल्सो एंड enum ऑल्सो. 1.7 से इसमें हम स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं स्विच के आर्गुमेंट में. ओके, so like this. For example, they have created enum for beer, kf, ko, rc and fo and test class के अंदर switch statement और इसमें b1 पास कर दिया. अब अगर b1 के अंदर kf आ रहा होगा तो this statement will execute. Okay, ko आ रहा होगा then this will execute, rc आ रहा होगा then this will execute, fo आ रहा होगा then है ना y1 get 1 some I mean this will execute. कोई भी अगर इनमें से नहीं आ रहा है तो डिफॉल्ट में अदर ब्रांड आर नॉट रिकमेंडेड टू टेक. ओके, दिस विल कम हियर. तो इट इज आई मीन फॉर एग्जांपल जैसे इसमें इन्होंने वैल्यू क्या रखी है यहाँ पे आरसी, और आरसी का क्या लिखा है इन्होंने, इट इज अ चैलेंजर ब्रांड. सो दिस इज प्रिंटिंग एज इट इज अ चैलेंजर ब्रांड. इफ वी आर पासिंग enum type as argument to switch statement, एवरी केस लेवल शुड बी अ वैलिड enum कांस्टेंट ही होना चाहिए. इसमें ऐसा नहीं हो कि कुछ डिफरेंट हो, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर आप ले लो तो दैट विल नॉट वर्क. ओके, सो enum वर्सेस इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस का इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? सो एवरी enum इन जावा इज अ डायरेक्ट चाइल्ड क्लास ऑफ java.lang.enum. यहाँ पे ई कैपिटल है और जो हम बना रहे हैं वो ई क्या है, स्मॉल है. लुक एट दिस, we are creating that is called small enum. ये जो enum क्लास है ये क्या चाइल्ड क्लास है किसकी, कैपिटल ई enum की. ओके, एंड इट इज अ चाइल्ड क्लास. ओके, एंड एवरी enum इज ऑलवेज एक्सटेंडिंग java.lang.enum. देयर इज नो चांस ऑफ एक्सटेंडिंग एनी अदर क्लास. अब ये ऑलरेडी एक क्लास को एक्सटेंड कर रही है तो इसमें किसी दूसरी क्लास को हम लोग एक्सटेंड कर नहीं सकते क्योंकि जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस. एज एवरी enum इज ऑलवेज क्या रहेगा, फाइनल इम्प्लिसिटली एंड वी कांट क्रिएट. ये बेसिकली फाइनल रहती है, वी कांट क्रिएट तो हम इसकी चाइल्ड भी नहीं बना सकते. आई मीन वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट इट. ओके, बिकॉज ऑफ अबव रीजन वी कैन कंक्लूड इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर enum. ओके, ऑलरेडी वो एक्सटेंड कर रही है और बाय डिफॉल्ट क्या है वो फाइनल है. ओके, बट enum कैन इम्प्लीमेंट एनी नंबर ऑफ इंटरफेस एट ए टाइम. कितने भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं enum. So java lang.enum in java will be direct child class of abstract. It is an abstract class and direct child class of object class, and this class implements comparable serializable interface. Hence every enum is by default serializable and comparable. हमको इसमें explicitly करने की जरूरत नहीं है. ये इस enum की बात करें java.lang.enum. okay, so ordinal method. So in the enum the order of constant is important, so we can specify its order by using ordinal value. So we can find ordinal value of सर enum constant.
सर ये समझ नहीं आया, कांस्टेंट क्यों कर रहे हैं हम, इसकी नीड क्या है मतलब? अच्छा, जिसकी वैल्यू आपको फिक्स करना आप चाहते हो कि मतलब ये मंथ के मंथ अंदर। क्यों फिक्स कर रहे हैं हम, इसके अलावा कुछ और नहीं है मतलब? समझ नहीं आया, मंथ से समझ अच्छा, नहीं आ रहा टोटल सर मंथ कितने कांस्टेंट। होते हैं काजल? हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? 12 सर। हाँ, 12 12 राइट। महीने सर। 12 महीने। हाँ। तो 12 महीने का एक क्लास बनानी जिसके अंदर 12 मंथ फिक्स हो, इनके अलावा ठीक है और सर। कोई मंथ इसके अंदर ना हो। देन हाउ यू कैन डू तो, दैट? इनका तो आपको इसके एक अलावा सर क्लास बनानी है जिसके 12 अंदर के ओनली अलावा मंथ। सर और तो होते नहीं है महीने? हाँ, सॉरी। मतलब सर 12 महीने फिक्स करना है मतलब? फिक्स फिक्स करना है क्यों कि कर एक रहे हैं सर मतलब? की नीड है, वी कैन यूज दैट। जैसे थ्रेड के अंदर थ्री वेरिएबल्स, थ्रेड प्रायोरिटी की जो वैल्यू फिक्स करनी थी, मिनिमम प्रायोरिटी करनी थी, नॉर्मल करनी थी और मैक्स करनी थी, राइट। ठीक सो है। ये ये फिक्स सर। करना था कि अगर मिनिमम का मतलब 1 है, नॉर्मल का मतलब 5 है और मैक्स का मतलब 10 है, ये फिक्स करना था। अब ठीक है सर। इसमें 3 4 आर नॉट अलाउड, ओके। 5 के बाद 6 7 8 9 आर नॉट अलाउड, ओके। तो ये फिक्स करना कि मिनिमम प्रायोरिटी का मतलब है कि थ्रेड की प्रायोरिटी क्या होगी, 1। नॉर्मल प्रायोरिटी का मतलब थ्रेड की प्रायोरिटी क्या होगी, 5। ये मेक श्योर करना कि इसके अलावा यूजर के हैंड में अगर आप दोगे तो यूजर तो कुछ भी टाइप कर सकता है, राइट। लेकिन ये फिक्स करेक्ट। करना, फिक्स करना, आपने बोला कि मिनिमम प्रायोरिटी, तो मिनिमम तो आप 2 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो, 4 भी दे सकते हो, नहीं। इस चीज की श्योरिटी करना, फिक्स करना कि आप इनके अलावा और कोई थ्रेड की प्रायोरिटी सेट नहीं कर सकते, ओके। जैसे ही इसमें कि मंथ की आपने मंथ के कांस्टेंट बना दिए, इनके अलावा और आप इसमें कुछ नहीं ले सकते, ओके। तो वेन एवर आई मीन यू वॉन्ट टू टेक दी मंथ, तो आप मंथ क्लास डॉट करके किसी भी मंथ को आप इसमें से कॉल कर सकते हो। फेब्रवरी मंथ लेना है, मार्च लेना है, मई लेना है, एनी मंथ। वीक जैसे हो गया, वीक 7 होते हैं। ह्यूमन कैन टाइप एनीथिंग, ह्यूमन कैन टाइप एनीथिंग, स्पेलिंग भी गलती कर सकता है ह्यूमन तो, राइट। तो वो फिक्स करेक्ट करना सर। कि अगर आपको वीक लेना है तो वीक के लिए आप वीक इनम क्लास यूज करिए और डॉट करके कोई भी मंथ का नाम वहां पे आप यूज कर लीजिए, ओके। तो हमसे कोई मिस्टेक ना हो, राइट। और कोई चीज हम अगर फिक्स करना चाहते हैं कि ये बेसिकली दिस इज अ स्टैंडर्ड विच वी नीड टू फॉलो, तो कॉन्स्टेंट्स बनाने की नीड हमें बहुत फ्रिक्वेंटली पड़ती है, ओके। जब भी हम कोड लिख रहे होते हैं कॉन्स्टेंट्स बनाने की नीड हमें पड़ती है। कॉन्स्टेंट्स बनाने के दो तरीके हैं। आइदर हमें खुद का कांस्टेंट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरीके से, पब्लिक स्टैटिक फाइनल और वेरिएबल का नाम और प्लस इक्वल टू उसकी वैल्यू। जरूरी नहीं है इसमें न्यू करके ही लिखना है। अगर मुझे जैसे, सर फाइनल यूज वर्ड यूज करना जरूरी है? हाँ, नहीं तो कांस्टेंट कैसे होगा फिर, राइट। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसमें आप कुछ और नहीं, फाइनल का मतलब कुछ और नहीं डाल सकते, वैल्यू जिसकी फिक्स करना है, तो इसलिए इसको क्या बनाना होगा, फाइनल। और बाय डिफॉल्ट इनम के केस में क्या है यहाँ पे, ये अगर मैं ये जैन लिख रहा हूं, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, ये बेसिकली इस होल लाइन के इक्विवेलेंट है। तो मुझे ऐसा कुछ ना लिखना पड़े, मैं नॉर्मली खुद के डेटा टाइप्स डायरेक्ट लिख के मैं ऐसे टाइप करके बना सकता हूँ, ओके। अदरवाइज मुझे कैसे क्रिएट करने पड़ते, लाइक दिस, ओके। तो सर कई ये तो हम बार फिल्टर करके भी कर सकते हैं ना सर, इनम की क्या जरूरत है इसमें? कैसे फिल्टर करके कैसे कर सकते हो आप? मतलब थ्रेड के थ्रू जो हम फिल्टर लगाते हैं, ये इतने महीने हैं, इतने महीने फिक्स हो गए, इसके अलावा फिल्टर में कोई महीना आएगा ही नहीं। जैसे हम सिलेक्ट फिर करते हैं कहीं कभी तो कभी आपको देखते हैं। बनाने तो पड़ेंगे ही ना, बनाने तो पड़ेंगे ही ना आपको कहीं ना कहीं, यू हैव टू तो सर क्रिएट, जो कहीं हम आपको ये थ्रेड सीख बनाने रहे तो थे, पड़ेंगे ही ना। जो हम थ्रेड सीख रहे थे और इनम में, दोनों में डिफरेंस क्या है मतलब? इसमें थ्रेड और, उसमें इनम में? थ्रेड का इनम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, थ्रेड का लिंक है ही नहीं उसका इनम से। इनम इज डिफरेंट क्लास, थ्रेड इज डिफरेंट क्लास। अच्छा, थ्रेड के अंदर कुछ कॉन्स्टेंट्स यूज कर रहे हैं, उन कॉन्स्टेंट्स की जगह पे हम इनम बना सकते थे, ओके। सो ये यस जो सर। थ्री कॉन्स्टेंट्स जो थ्रेड के अंदर यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं, है ना, थ्रेड के अंदर जो थ्री कॉन्स्टेंट्स जो बनाए हुए हैं, उसमें अगर आप देखोगे तो वो उसके लिए हम इनम यूज कर सकते थे, इसमें मिन प्रायोरिटी, मैक्स प्रायोरिटी, ये सब कर सकते थे,
हम लोग यहाँ पे। अगर हम ये ना दें तो फिर तो ह्यूमन के अगर हैंड में कुछ चीजें आप दे रहे हो तो वो तो कुछ भी टाइप कर सकता है, 20 टाइप कर सकता है यहाँ पे, राइट। और कोड ब्रेक हो जाएगा आपका, फट जाएगा कोड आपका, क्योंकि अलाउड ही नहीं है आपका, राइट, है ना। करेक्ट रन सर। टाइम पे ब्रेक हो जाएगा। तो इस चीज का श्योर करना कि ये फिक्स वैल्यू है, आपको यही यूज करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं यूज करना। जनवरी की स्पेलिंग आपने फिक्स कर दी, आप मंथ नाम से जनवरी को कॉल करो, यू कैन यूज इट। अब अगर आपके हाथ में तो आप तो कुछ भी टाइप कर सकते हो, राइट, थिंग्स विल ब्रेक। ये बेसिकली मेक श्योर करना इस चीज का कि इसमें थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी, इसका मतलब इसमें क्या आ गया तो होगा सर अभी, 10, 10 एम ए सर, 10। हाँ। इसकी जगह क्या कर सकते थे, इसकी जगह अगर मैक्स प्रायोरिटी अगर यहाँ पे हमें 10 करनी थी तो क्या कर सकते थे हम लोग, यहाँ पे कोई अपना थ्रेड इनम बना लेते और डॉट करके हम लोग मैक्स प्रायोरिटी जो भी उसमें 10 थी और हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे भी कॉल कर सकते थे। तो दोनों ही तरीके हैं हमारे पास, वी डू हैव बोथ वे। लेट मी सर पुट हियर ऐसा हम कर सकते हैं, जैसे हम नंबर डाल दें, जैसे वो नंबर टाइप करें मंथ आ जाए। मैक्स, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम पुटिंग हियर, let me put here the comma here, is not allowing me, wait, for example आई मीन ये ऑलरेडी अपने आप में इस वैल्यू को ये पुट कर रहा है। लेट मी टेक सम एग्जांपल। हाँ, आप क्या बोल रहे हो पहले आप बताओ। सर जैसे कि जैसे इनपुट हमें देना है, इनपुट कोई भी लेना चाहता है कस्टमर, तो जैसे ही कि अगर 12 लिखे तो सीधा मतलब उसका दिसंबर मंथ आ जाए, मेरा कहने का मतलब है। ऑब्जेक्ट ले तो सीधा क्या आ जाए, जैसे दिसंबर। नंबर ही, हाँ, मतलब उसको टाइप ना करना पड़े अल्फाबेट, नंबर टाइप करे देन मंथ अपने आप आ जाए। आप इसका बोल रहे हो कि यहाँ पे ये ना लिखना पड़े, हाँ। दैट यू आर सेइंग, ये चीज ना लिखना पड़े। तो ये कैसे, इसको हम्म आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि कौन सा मंथ चाहिए? मंथ के अंदर तो 12 मंथ पड़े हुए ना सीधा। जनवरी से जैसे स्टार्ट हो, आई मीन जनवरी इसको फरवरी इसको मार्च कैसे अप्रैल। मालूम चलेगा, हाउ इट विल गेट टू नो? कंप्यूटर को थोड़ी कुछ मालूम है कि आप क्या सर्च करना चाहते हो। आपने कहा कि नहीं, मंथ वही M1 वही चीज इक्वल तो टू हम मंथ। देना चाहते हैं सर, वही चीज तो हाँ, हम देना चाहते हैं कि जैसे मतलब ये समझ ले हम क्या इसमें कोडिंग करें, हम यूजर को बस वो नंबर टाइप करें देन महीना अपने आप आ जाए। आप क्या जैसे कहना चाह एक रहे के हो कि बेस पे केवल हमने ऐसा जनवरी लिखे, दे दिया। केवल ऐसा लिखे ये मंथ आपको दे दे M1। मंथ में आपको कौन सा मंथ दे देगा, जनवरी मंथ दे दे, राइट। हाँ करेक्ट अब सर। आप ये सोचो इसको कैसे मालूम चलेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, हाउ इट विल गेट टू नहीं नो? जैसे, नहीं जैसे जैसे यूजर ने सर वन टाइप करा तो हाँ। अपने आप जनवरी आ जाए, तो इस तरीके का हम्म। कुछ कोडिंग हो सकता है। हाँ, वो तो सारा पॉसिबल है कि आप फिर, लेकिन फिर भी तो आप 1 से एसोसिएट कर रहे हो ना, 2 से एसोसिएट कर हाँ रहे हो ना, वही, 3 से एसोसिएट कर रहे हो ना। तो तो वो आइदर चीज आप कैसे एसोसिएट करेंगे करो सर? उसको, हाँ वो आगे हम लोग देखेंगे उसको कि सीक्वेंस ऑर्डर ये सब कर सकते हैं हम लोग इसमें, है ना। और इनमें से भी हम लोग इसमें कर सकते हैं कि हम लोग ऐसे भी डायरेक्ट सर्च करके एंड वी कैन फाइंड इट। ओके, सो क्योंकि मैंने देखा है सर टैली में ऐसा ऑप्शन है, मतलब हम लिखते कुछ और है आता कुछ और है, हम अपनी तरफ से कुछ दे देते हैं वर्डिंग, तो वो एक्चुअली वो होता नहीं है, हम जैसे ही सर्च करते हैं उसको बट आता कुछ और है, कुछ और आ जाता है उसमें। हम्म। अब जो भी वो तो सॉफ्टवेयर का आउटपुट है, जो भी उसमें फीड किया होगा वो उसके अकॉर्डिंग हाँ चल सर। रहा होगा, जो भी वो बनाया गया होगा वो अपने से खुद इंटेलिजेंसी अपने से नहीं लगा सकता वो, है ना, कि वो अपने से कुछ नहीं करेगा, जितना उसको बताया गया होगा वो उतना ही कर हम्म। सकता है। ओके, उसके अलावा हम्म, नहीं कर सकता ये बेसिकली ना। जैसे फॉर हम्म। एग्जांपल सीजन के लिए इन्होंने ये बनाया है, दे हैव क्रिएटेड द फॉर द सीजन वन ऑफ विंटर। लेट मी फाइंड सम मोर एग्जांपल फॉर इनम। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल साइज के लिए इन्होंने बना लिया, ओके, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। ओके, एंड हियर इज द एग्जांपल कि साइज डॉट स्मॉल किया
तो आपका क्या आ जाएगा, स्मॉल साइज आ जाएगा। साइज डॉट मीडियम है तो आप मीडियम ऑर्डर कर दोगे। तो जैसा भी आप उसमें से साइज सिलेक्ट करना चाहो, है ना, सो वी कैन बेसिकली इसके लिए खुद से कांस्टेंट भी बना सकते थे, और इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसे फाइनल कीवर्ड से भी बना सकते थे, और इसको इनम के थ्रू भी हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल जैसे पिज्जा साइज हो गया, स्मॉल हो गया, मीडियम हो गया, लार्ज हो गया, एक्स्ट्रा लार्ज हो गया, राइट। तो जहां भी आपको कुछ इस तरह का, जैसे ना जिनकी वैल्यू फिक्स है कि इनके अलावा आप जैसे वो नहीं कर सकते। ओके, तो मान लीजिए स्मॉल साइज है, तो स्मॉल साइज का एक शेप डिफाइन किया गया हुआ होगा उसमें, और अपने से आप कोई साइज नहीं दे सकते, ये फिक्स है आपको कि स्मॉल साइज में आपको यही शेप सिलेक्ट करना होगा, तो ये फिक्स कर देना। ओके, ये फिक्स कर देना। तो फिक्स करने के दो तरीके हैं, आइदर वी कैन क्रिएट बाय यूजिंग कांस्टेंट, और वी कैन क्रिएट बाय यूजिंग द enum. Okay, so like this we can do, and apart from it we were talking something here. Okay, so ordinal method है, with the enum order of constant is important. Okay, now it's that you were saying कि हम लोग इसका ऑर्डर ऐसा कर सकते हैं कि we can specify its order by using ordinal value. We can define ordinal value by enum constant by using, or I mean ordinal method. There is an ordinal method inside it. Okay, तो यहाँ पे KORCFO कांस्टेंट बना लिया, एंड वन बाय वन हमने इसमें क्या किया कि सारे अगर आपको इनम्स अगर फेच करने हैं तो आप इसमें वैल्यूज मेथड कॉल कर लो। ओके, और वंस यू कॉल दी वैल्यूज मेथड, और वन बाय वन आप क्या कर सकते हो, इनको जीरो इंडेक्स, अगर आप जीरो इंडेक्स फर्स्ट टाइम जब आप पुट करोगे तो यू विल गेट, यहाँ पे ये बेसिकली ऑर्डर भी आ रहा है। लुक एट दिस, एक एक करके इन्होंने वैल्यू निकाला। लेट मी शो यू हेयर कि फॉर एग्जांपल, ओके, तो यहाँ पे एक साथ सारे इनम्स को लेके आना, जो भी इस मंथ के अंदर कांस्टेंट हैं उन सबको यहाँ पे लेके आना। ओके, सो हाउ वी कैन डू दैट। ओके, सो यहाँ पे मंथ्स, ओके, एरे ऑफ m इक्वल टू, और यहाँ पे मंथ इक्वल टू मंथ्स डॉट वैल्यूज, इसने बेसिकली सारे कांस्टेंट आपको दे दिए। और नाउ व्हाट यू कैन डू, फॉर ईच के थ्रू आप इन सभी को क्या कर सकते हो, फॉर ईच के थ्रू आप इनको सभी को प्रिंट कर सकते हो। फॉर ईच के थ्रू सभी को क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे इनको एक एक करके क्या कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हो। सो सिस आउट, एंड आप इस मंथ को यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रिंट। तो आप इस तरीके से इनको क्या कर सकते हो, प्रिंट भी करा सकते हो। यू कैन प्रिंट लाइक दिस। प्लस आप चाहते हो इसमें कि इनका मुझे इंडेक्स निकालना है, आई वांट टू गेट द इंडेक्स हियर, सो m dot ordinal. Okay, so this will give the order of it. See, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो जीरो से लेकर इसके लिए क्या बनने वाला है, इसका इंडेक्स 11 होगा, राइट। ओके, 0 to 11, ये बेसिकली क्या है, एरे का इंडेक्स इट इज प्रिंटिंग। ओके, सो डू द प्रैक्टिस फॉर इट। Create one of constant, so you will get some idea. Okay, and how you can use, आप डायरेक्ट भी इसमें आप यूज कर सकते हो, और इसके थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, आप डायरेक्ट भी इसमें यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर सिस आउट लगाऊं, मंथ्स डॉट जैन, आई वांट टू फेच दिस। ओके,
एंड हियर ऑल्सो आई विल गेट समथिंग जनवरी में डायरेक्ट भी गेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग दी क्लास नेम, एंड मैं एक साथ सारे इनम निकाल के और 1 बाय 1 भी उनको प्रिंट कर सकता हूँ, उनका ऑर्डर भी निकाल सकता हूँ, व्हाट द ऑर्डर ऑफ दोज. ओके ओके so this was the example constant examples. ओके तो इसमें अगर हम लोग इनम यूज नहीं कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट यूजिंग द इनम, तब हमको कैसे बनाना होगा कांस्टेंट? वी हैव टू क्रिएट लाइक दिस. ओके सो वी हैव टू क्रिएट लाइक दिस. So we have to create like this. Okay ओके सो यहाँ पे आपका जो एक लाइन आपने जो लिखा है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल मंथ जैन इक्वल टू न्यू मंथ, इस ऑब्जेक्ट के इक्विवेलेंट है आपका इनम के अंदर ये. ओके हाउ वी कैन क्रिएट द इनम? वी कैन क्रिएट बाय दिस, आई मीन यू नो इनम एज अ टाइप ऑफ दिस मंथ. तो खुद का हमने डेटा टाइप बना लिया कि मंथ कंटेंट सम कांस्टेंट्स जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई. ओके so enum class constructor and especially of Java enum. So when compared with old language, जैसे old language enum, Java enum is more powerful because in addition to constants we can take, इसमें variable भी ले सकते हैं, है ना, months constructor भी बना सकते हैं इसमें, which were not possible जैसे with the old language. This extra facility is due to internal implementation of enum concept which is class based. Inside enum we can declare main method, main भी बना सकते हैं इसके अंदर, hence we can invoke, कॉल कर सकते हैं enum class directly from command prompt से भी हम इसको रन कर सकते हैं. So that they are trying to say. Okay and in addition to constant, if we want to take any extra members, compulsory list of constants should be in फर्स्ट लाइन होने चाहिए आपके, एंड शुड एंड में उसका क्या होना चाहिए? सेमी कॉलन होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल रेड ग्रीन ब्लू, ये कलर ले लिया इसमें, अगर इसके अंदर इफ यू आर डिफाइनिंग समथिंग, सो एक इसमें पहली लाइन ये होना चाहिए, एंड ऑफ द लाइन सेमी कॉलन होना चाहिए. ओके सो इफ वी आर पुटिंग मेथड पहले लिख रहे हैं और उसके बाद हम कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं, तो दिस विल नॉट वर्क. ओके so we can put in this way, after semicolon we can give the method as well. Okay inside enum without having constant we can't be take any extra members, but empty enum is always valid. आप empty enum बना सकते हो, लेकिन बगैर किसी constant के आप इसमें method define करोगे तो this will not work. Okay enum class constructors. So within enum we can take constructor also. Enum class constructors will be executed automatically at the time of enum class. जैसे क्लास लोड होगी ये उसी समय एग्जीक्यूट हो जाए, बिकॉज enum constant will be created at the time of class loading, क्योंकि वो स्टैटिक होते हैं. so we can't call enum constructor explicitly, हम इसको कॉल नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल जैसे बियर का इन्होंने कांस्टेंट बनाया, एंड इफ वी आर ट्राइंग टू कॉल बाय मैनुअली वी कांट डू, बट जैसे ये एग्जीक्यूट होगा ये ऑटोमेटिकली क्लास लोडिंग के टाइम पे ये आपका कंस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा. ओके we can't create ऑब्जेक्ट ऑफ enum एक्सप्लिसिटली, हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर को कॉल डायरेक्टली कर नहीं सकते हैं. ओके सो enum टाइप में नॉट बी इंस्टेंशिएटेड. ओके ऐसे ऑब्जेक्ट ऐसे डायरेक्ट नहीं बना सकते हम लोग. ओके So within the enum we can take instance and static methods, but we can't take abstract method. इसमें नहीं ले सकते क्योंकि abstract method को implement करेगी क्लास, और हम इसको कर नहीं सकते क्योंकि by default क्या है? final. Every enum constant represent an object, hence whatever the method we can apply on the normal Java object, we can apply those on enum constants also.
सो डू सम एग्जाम, enum वर्सेस enumeration। अब कुछ नहीं, इसके नाम का बेसिकली सिमिलरिटी है। enum बेसिकली क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्लास है enum की, एंड enumeration हमें मालूम है किस में यूज होता है, इंटरफेस के कलेक्शन के अंदर, राइट। So enum, it is a keyword which can be used to define group of named constant। अगर आपको बनाना है enum बना लो। And it is a class present in java.lang package and which act as a base class for all the सारी java enum class के लिए ये as a parent class treat होती है। Enumeration, it is an interface present in java.util package which can be used to retrieving objects from collection one by one। So लेगेसी क्लास को इटरेट करने के लिए कलेक्शन में हम लोग इनुमरेशन यूज करते हैं। ओके, सो हियर enum हैज कंप्लीटेड। So do some practice for this enum and let me know if you face any challenge related to enum। Okay, इसके बाद कल हम स्टार्ट करेंगे I18 इंटरनेशनलाइजेशन। ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे enum से पहले हम लोगों ने क्या किया था, रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट, and then we discuss about enum to create the constants। okay, and next हमारा टॉपिक है I18 इंटरनेशनलाइजेशन। ओके, सो I18 हम लोग पढ़ेंगे, एंड I18 का आई कैन टेल यू कि इसका यूज क्या है। I18 का लेट मी टेल यू। जैसे मैं किसी भी वेबसाइट की लैंग्वेज कन्वर्ट कर सकता हूँ, जैसे अभी ये इंग्लिश में दिख रही है आपको, एंड आई कैन कन्वर्ट दिस वेबसाइट, मैं हिंदी में कर सकता हूँ। ओके, सो आप देखिए होल वेबसाइट्स आपकी हिंदी में कन्वर्ट हो गई। इसमें ऐसा नहीं कि हिंदी लैंग्वेज के लिए इन्होंने अलग से वेबसाइट बनाई हो। तो एक इसमें I18 की वजह से, इंटरनेशनलाइजेशन की वजह से आपकी सारी वेबसाइट की कोई भी लैंग्वेज आपकी क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, देखिए आप इसका तमिल तेलुगु जो भी है ये लैंग्वेज आपकी क्रिएट हो गई है। ओके, ये आपकी इंग्लिश में, गिव मी अ मिनट, आई कैन टेक हियर इंग्लिश। ओके, सो मैं किसी भी वेबसाइट की लैंग्वेज, होल एप्लीकेशन को मैं लैंग्वेज, पूरी होल लैंग्वेज चेंज कर सकता हूँ। ये जो इसका ये जो मैजिक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द I18। I18 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 18 कैरेक्टर हैं इंटरनेशनलाइजेशन में, IN और इसमें कितने 18 कैरेक्टर हैं, इसलिए इसको I18 बोलते हैं, और या फिर इसको इंटरनेशनलाइजेशन बोलते हैं। बिकॉज ऑफ दिस हम किसी भी एप्लीकेशन की क्या कर पा रहे हैं, लैंग्वेज है ना, चेंज कर पा रहे हैं, पूरे एप्लीकेशन को डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, I mean tomorrow we will talk about I18। okay, till the time do some practice for this enum। okay, सर इसके पीछे तो बहुत लंबी कोडिंग होती होगी, फिर दी नहीं लैंग्वेज चेंज हो जाता है। नहीं, कुछ नहीं है, पहले से चीजें बनी हुई हैं, बस आपको यूज करना है उनको, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी बड़ी इसमें वो नहीं है। ओके, लेकिन सर किसी ने तो बनाया होगा, वो लैंग्वेज कैसे चेंज हो जाता है? आई मीन लैंग्वेज चेंज हो जाता है I18 की वजह से, इंटरनेशनलाइजेशन की वजह से। इसके बारे में कल हम लोग बात करेंगे, कौन सी क्लास है इसके अंदर, कौन से मेथड्स हैं, राइट, वी विल टॉक अबाउट। ओके।